کراچی سمیت صوبے بھر میں شدید گرمی کی نئی لہر آنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ درجہ حرارت 50 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، شہر میں سورج آگ برسانے کو ہے تیار۔ شہر کائی سمیت اندرون سندھ میں شدید گرمی کی نئی لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کراچی میں 12 سے 16 مئی تک پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں فی الوقت ہیٹ ویو کا خطرہ نہیں، لیکن موسم شدید گرم رہے گا۔ کراچی میں ایسا ہیٹ ویو کا خطرہ نہیں ہے، البتہ کراچی میں گرم اور مرطوب موسم تو چل ہی رہا ہے۔ 36 ڈگری 35 پچھلے دنوں سے ٹیمپریچر چل رہا ہے، لیکن اب گریجولی بڑھے گا یعنی کل 37 تک جا سکتا ہے اور پرسوں 38 یا 39 تک جا سکتا ہے، اور پھر 13 14 اور ہو سکتا ہے 15 کو بھی۔ یہ 3 دن ایسے ہوں گے کہ جس میں ہو سکتا ہے 40 تک ٹیمپریچر چلا جائے۔ ادھر ممکنہ ہیٹ ویو کے خطرے کے پیش نظر ڈی سی او جنوبی نے ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیے۔ ڈی سی او جنوبی عبدالستار عیسانی نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ دوسری جانب کراچی کے مقابلے اندرون سندھ میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دادو اور لاڑکانہ میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ہیٹ ویو کی لہر کا خطرہ، ڈی سی جنوبی نے ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیا۔ شہری ہیٹ ویو علامات کی صورت میں ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ کریں۔ محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ موسم گرم اور خشک رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ کراچی کا درجہ حرارت 12 سے 16 مئی 2022 تک 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہیٹ ویو کے تناظر میں ڈی سی جنوبی عبدالستار عیسانی نے تمام شہریوں سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی التماس کی ہے۔ شہر میں ایک بار پھر بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ الیکٹرک نے شہر میں صارفین کو لوڈ شیڈنگ کا نیا شیڈول بھیج دیا، جس پر صارفین نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ کہ الیکٹرک کے بلند بانگ دعوے دھرے رہ گئے۔ رواں برس سسٹم میں 450 میگا واٹ بجلی شامل کرنے کے دعوے کے باوجود شہر میں لوڈ شیڈنگ کی ابتر صورتحال۔ مستثنی علاقوں کے صارفین کو بھی لوڈ شیڈنگ کا شیڈول موصول ہو گیا۔ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے اذیت بن گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ رات گئے بجلی بند کر دی جاتی ہے کہ الیکٹرک کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لائٹ کی تو پوری پریشانی ہے لائف کی، پوری تقریباً صبح رات کو بھی 3:30 بجے آئی ہے لائٹ، میرے خیال میں پوری رات گئی ہوئی لائٹ۔ تھوڑی دیر آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، پھر رات کو ساری رات تنگ کر رہی ہے۔ لائٹ ہے کہاں، نہ رات کو سکون ہے نہ دن میں سکون ہے۔ پوری رات ہو گئی، لائٹ تو ہے ہی نہیں۔ ابھی آئیے 8:30 بجے کی گئی ہوئی ہے، اب آئیے رات کو 1 بجے گئی ہے، 3 بجے لائٹ آئی ہے۔ لائٹ کے بارے میں تو پوچھو مت۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی دوبارہ 6 سے 12 گھنٹے کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ گزشتہ برس کے مقابلے رواں سال لوڈ شیڈنگ بڑھا دی گئی ہے۔ سندھ حکومت کا ایک اور احسن اقدام، گرمی میں اضافے کے پیش نظر درخت نہ لگانے والی نئی ہاؤسنگ اسکیمز کو ماحولیاتی NOC نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر ماحولیات اسماعیل راہو کی صدارت میں اہم اجلاس ہوا۔ اسماعیل راہو نے کہا کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں درخت لگانے والی نئی ہاؤسنگ اسکیمز کو ہی ماحولیاتی NOC دیا جائے گا۔ نئی ہاؤسنگ اسکیمز کو تعمیرات شروع کرنے سے پہلے گرین بیلٹ کے لیے زمین مختص کرنا ہوگی۔ ہاؤسنگ اسکیمز اور شاہراہوں پر متعلقہ اداروں سے مل کر درخت لگانے کی مہم شروع کی جائے گی۔ درخت کاٹنے والی مافیاز کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کراچی میں NA 240 پر ضمنی انتخاب کا معرکہ، 9 جماعتوں کے 35 اور 7 آزاد سمیت 42 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 240 پر ضمنی انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا۔ 42 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، ان میں 9 جماعتوں کے 35 اور 7 آزاد امیدوار شامل ہیں۔ MKM پاکستان نے سب سے زیادہ 8 امیدواروں کے نامزدگی فارم جمع کرائے۔ PTI کے ساتھ پیپلز پارٹی کے 3، مہاجر قومی موومنٹ کے 6، TLP کے 3 امیدوار میدان میں ہیں۔ PSP اور GDA نے 3 جبکہ مسلم لیگ کاف کے 1 امیدوار نے نامزدگی فارم جمع کرائے ہیں۔ امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال 14 مئی تک ہوگی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 24 مئی ہے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست بھی اسی روز آویزاں کی جائے گی۔ 25 مئی کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ NA 240 پر ضمنی انتخاب کا معرکہ 16 جون کو ہوگا۔ سندھ کابینہ نے جیٹیز کو رجسٹر کرنے کے قوانین کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ساحلی پٹی پر 64 جیٹیز غیر قانونی طور پر چلنے کا انکشاف ہوا۔ محکمہ لائیو اسٹاک نے بریفنگ میں بتایا کہ غیر قانونی جیٹیز سے خزانے کو 4 ارب کا نقصان ہوا۔ سندھ کابینہ نے NED یونیورسٹی ٹیکنالوجی پارک پروجیکٹ کی منظوری بھی دے دی۔ اجلاس کے دوران سیکرٹری داخلہ نے عادی مجرموں کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مانیٹرنگ ضروری قرار دے دی۔ تجویز دی کہ اسٹریٹ کرائم اور شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ عادی مجرموں کی مانیٹرنگ ہے۔ الیکٹرانک چپ عادی مجرموں کو پہنایا جائے گا۔ کابینہ کے چند وزراء نے ایسے قانون کو انسانی حقوق کے خلاف
करार दिया, काबीना ने मुसवदा कानून मंजूर कर लिया। कानून असम्बली को भेजने की तजवीज़ दी ताकि जिस पर मजीद गौर किया जा सके। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में बताया कि 60 दिनों में कराची की सड़कों पर भरपूर तादाद में पब्लिक बसें चलती नजर आएंगी। कराची इंट्रासिटी के लिए 240 बसें कल से पहुंचना शुरू हो जाएंगी। इंट्रासिटी रूट्स पर टूटी सड़कों की मरम्मत की हिदायत भी कर दी गई। 60 दिन में रौनकें बढ़ जाएंगी। शहर कायद की सड़कों पर भरपूर तादाद में बसें चलती नजर आएंगी। वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची वालों को काबीना इजलास के बाद खुशखबरी सुना दी। प्रेस ब्रीफिंग में शर्जील मेमन ने बताया कि कराची इंट्रासिटी मंसूबे के लिए मंगवाई गई 240 बसों की पहली खेप कल पहुंचना शुरू हो जाएगी। 2 माह के अंदर शहर में बड़ी तादाद में बसें चलती दिखाई देंगी। ऑरेंज लाइन है इस वक्त, और हमारी जो इंट्रासिटी बस आनी है वो टोटली फोकस्ड में है। इंट्रासिटी में 240 बसें कराची के लिए आ रही हैं, 10 बसें लाड़काना के लिए आ रही हैं। 60 डेज चले इसको पकड़ने, थोड़ा सेफ मैं कहता हूँ, विदिन 60 डेज आपको कराची में भरपूर तरीके से ये बसें चलते नजर आएंगी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने मजीद बताया कि इजलास में आइंदा बजट में आवाम पर टैक्स लगाए बगैर आमदनी बढ़ाने और अखराजात में कमी लाने पर भी गौर किया गया। बजट में बिल्कुल जो हमारी सैलरीज कंपोनेंट हैं, आपको अंदाजा कि हम लोग महीने पे सिंध गवर्नमेंट कितनी सैलरीज पे करती होंगी। महीने पे आप सब माशाल्लाह असेंबली को भी कवर करते हैं, 60 अरब रुपया एवरेज में बता रहा हूं कि हर माह सिर्फ सैलरी के कंपोनेंट में जाते हैं सिंध गवर्नमेंट, 60 बिलियन रुपीस। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना था कि काबीना इजलास में आधी मुजरमों की टैगिंग, सिंध को दरपेश पानी की कमी, सीनियर सिटीजन कार्ड्स के इजरा समेत माहीगीरों की जेटियों को रजिस्टर्ड करने के हवाले से भी मुख्तलिफ हिदायत जारी की गईं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। ख़वातीन के लिए सोने की खरीदारी ख्वाब बन गई। डॉलर की ऊंची उड़ान ने सोना भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। 1 तोला सोना 1400 रुपये महंगा होकर मुल्की तारीख में पहली बार 1,34,400 रुपये का हो गया। ख़वातीन के लिए बुरी खबर, डॉलर की ऊंची उड़ान ने सब कुछ महंगा कर दिया। मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 1400 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत मुल्की तारीख में पहली बार 1,34,400 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गई। साथ ही 10 ग्राम सोना भी 1200 रुपए महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 1,15,226 रुपए पर पहुंच गया है। ऑल सिंध सराफा बाजार डीलर अब्दुल्ला चांद का कहना है कि आलमी मार्केट में सोना सिर्फ $3 महंगा हुआ, लेकिन डॉलर में मुसलसल महंगा होने से सोने की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ। गोल्ड मार्केट पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे है। उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि आज इंटर बैंक में बुलंद तरीन सतह हो गई है। डॉलर बहुत हाईएस्ट रेट पे चला गया है, 188 तकरीबन 66 पैसे का डॉलर हो गया जो इंटर बैंक में। उसकी वजह से आज पाकिस्तान में गोल्ड जो है वो बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। और आज आलमी मार्केट में भी जो है सोना बढ़ा है, मगर उसकी आज जो सोने की वजूहात है ज़्यादा बढ़ने की, वो हमारे यहाँ इंटर बैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान है। सरफा बाजार डीलर का कहना है कि आलमी मार्केट में सोना $3 महंगा होकर $1863 फी औंस का हो गया है, जो दुबई से अभी भी 1500 रुपए फी तोला अंडर कॉस्ट है। अशरफ खान, सिटी 21। वज़ीर बल्दियात सिंध की हिदायत पर एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड ने पानी चोरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। लांडी लेबर स्क्वायर में वाटर माफिया के खिलाफ पुलिस के हमरा बड़ी कार्रवाई की गई। लांडी इंडस्ट्रियल एरिया में पानी सप्लाई का बड़ा गैर कानूनी हाइड्रेंट पकड़ा गया। जीनत फैक्ट्री की आड़ में जदीद प्लांट और ज़ख़ीरा आब के बड़े ज़ेर ज़मीन टैंक बनाए गए थे। यौमिया सैकड़ों वाटर टैंकर इंडस्ट्रियल एरिया में महंगे दामों फरोख्त किए जाते थे। मुतादिद वाटर टैंकर, मोटरें, पाइप्स और दीगर आलात कब्जे में ले लिए गए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने हुकूमत को नए माली साल के लिए बजट तजावीज़ दे दी। टैक्स में रजिस्टर्ड न होने वाले नॉन फाइलर्स पर भारी टैक्स शरह आयद करने की तजवीज़ दी गई है। नॉन फाइलर्स पर 2000 सीसी वाली गाड़ी खरीदने पर टैक्स की शरह 3 गुना कर दी जाएगी। नॉन फाइलर्स के लिए बैनुल अक़वामी बिजनेस क्लास टिकटों पर 50,000 रुपये विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी दी गई है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ दे दी। हुकूमत को फराम करदा बजट तजावीज़ में इनकम टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में नुमाया इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ये भी कहा है कि फाइलर्स और नॉन फाइलर के लिए अलग अलग विद होल्डिंग टैक्स से मईशत को दस्तावेज करने का प्लान था। काउंसिल के मुताबिक नॉन फाइलर से विद होल्डिंग टैक्स तो लिया गया, लेकिन टैक्स नेट में नहीं लाया गया।
पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा है कि हुकूमत नए बजट में मौजूदा टैक्स दहंदगान पर बोझ न डाले, बल्कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए गैर रजिस्टर्ड अफराद पर टैक्स रेट बढ़ा दे। तजवीज़ दी है कि गैर रजिस्टर्ड सनती तजारती इदारों पर सेल टैक्स 17% से बढ़ाकर 30% कर दिया जाए। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के बिजली के बिल के जरिए रजिस्टर्ड किया जाए। तजवीज़ दी कि इनकम टैक्स के तहत तमाम छूट जरिए आमदनी पर सिर्फ फाइलर्स को ही दी जाए। नॉन फाइलर्स के लिए बैनुल-अक़वामी बिजनेस क्लास टिकटों पर 50,000 रुपए विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर 2000 सीसी की गाड़ी खरीदने पर 8 लाख रुपए एडवांस इनकम टैक्स को बढ़ाकर 24 लाख करने की तजवीज़ दी गई है। ये भी कहा है कि 900 स्क्वायर फीट तक फाइलर्स और नॉन फाइलर पर जायदाद की फरोख्त पर एडवांस इनकम टैक्स 1% है, जिसे बढ़ाकर 10% करने की तजवीज़ दी गई है। अशरफ खान, सिटी 21। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बावजूद भी नई लिस्टिंग के तहत जेम बोर्ड लिस्टिंग में सुपरनेट लिमिटेड रजिस्टर तकरीब हुई। स्टॉक इंतजामिया ने नई लिस्टिंग को खुश आइंद करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई कंपनी की लिस्टिंग जैम बोर्ड लिस्टिंग में सुपरनेट लिमिटेड की शमूलियत कारोबार का आगाज रिवायती घंटा बजाकर किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सीईओ सुपरनेट लिमिटेड का कहना था कि आईटी सेक्टर सरमायाकारी में बेहतरी आई है। हमें अपना सिस्टम मजबूत बनाना होगा ताकि बैरून ममालिक से काम आए। Not only investors understand कि this is an era of IT or technology and therefore we are in the right direction and we are also seeing again मतलब continuously growth in this area. मार्केट में नई लिस्टिंग को स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया ने खुश आइंद करार दिया। तकरीब में स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया समेत जैम बोर्ड मेंबरान ने भी शिरकत की। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शान ने ई स्टैंपिंग का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सूबे में तालीम, सेहत, सलामती और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के इक़दाम तरजीहात में शामिल हैं। ई स्टैंपिंग की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद हुई। इस मौके पर वज़ीर आला मुराद अली शान ने कहा, सूबाई हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। अभी भी इसमें मज़ीद इस्लाहात और आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत ने हमेशा कोशिश की है कि टैक्स रेट मुनासिब हों। कोशिश है कि गरीब तबके पर बोझ ना पड़े। ई स्टैंपिंग वेब बेस्ड चालान ऑनलाइन हासिल होंगे। ये चालान नेशनल बैंक भी जारी करेगा। नेशनल बैंक ने अपनी 22 ब्रांचेज में ये ई स्टैंपिंग का सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। अब ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुल्क की 300 ब्रांचेज में जारी होगा। तकरीब में नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी, वज़ीर रेवेन्यू मखदूम महबूब, चीफ सेक्रेटरी और दीगर ने भी शिरकत की। नॉर्वे के सफ़ीर की एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब से मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात बल्दिया उज़्मा कराची के सदर दफ्तर में हुई। मुलाकात में सेकंड सेक्रेटरी पॉलिटिकल और प्रोग्राम एडवाइज़र डेवलपमेंट मोहम्मद बिलाल मजीद भी नॉर्वे के सफ़ीर के हमरा मौजूद थे। मुर्जा वहाब ने नॉर्वे के सफ़ीर को KMC बिल्डिंग की तारीखी अहमियत से आगाह किया। बैरिस्टर मुर्जा वहाब ने शहर में जारी तरक्याती कामों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और दीगर अमूर के हवाले से नॉर्वे के सफ़ीर को तफसीलात भी बताईं। नॉर्वे के सफ़ीर और उनके वक्त के अरकान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि कराची की मौजूदा इंतजामिया की तरफ से शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दाम के मुफीद नताइज सामने आएंगे और कराची के शहरियों को जल्द पहले से बेहतर और जदीद शहरी सहूलियात मैसर आएंगी। मुर्जा वहाब ने नॉर्वे के सफ़ीर और उनके वफ़द के अरकान को बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से शील्ड पेश की और सिंध की रवायती अजरक और टोपी भी पहनाई।